Good morning students. Student, in last video we have done this chapter's 4 question. Okay, now today we are going to start its remaining question answer. Okay, so let's see without wasting time. Fifth question is from your book. Why did the driver not want to get out of the spaceship? Okay, I repeat again. Why did the driver not want to get out of the spaceship? ड्राइवर स्पेसशिप से बाहर क्यों नहीं निकलना चाहता था? Because its answer is the driver did not want. Okay, the driver did not want to get out of the spaceship. यहाँ से देखो स्टूडेंट, when we write any answer then first we have to take some sentence from the question also. So the driver not, यहाँ पे did not आ जाएगा आपका, ठीक है ना. The driver did not want to get out of the spaceship. यहाँ तक आपका सेम हो गया आंसर. Then because, then we start its answer from because he was scared. Okay, because he was scared about the sort of creatures, okay, that lived on this planet. वह मतलब कि डरा हुआ था, scared था about the sort of creature, जो इस planet पे रहने वाले creatures से कि किस तरह के वो हैं. He was scared if those creatures would eat him. और वो डरा हुआ था कि कहीं वो creature उसको खा नहीं जाए, ठीक है. So its answer is this. So you have to write this answer without any mistake in good handwriting. Okay. Your sixth question is why was step 7 not helpful? Step 7 helpful क्यों नहीं था? Its answer is long but it's not okay. But you have to write, okay, step 7 really wasn't helpful at all. कि step 7 really helpful नहीं था. It said, क्योंकि इसने क्या कहा? If your ship was built before human discovered, कि तुम्हारा शिप अगर human discovered से पहले बना हुआ है, alien discovered से, then give up, then हार मान लो और get a ride home, और अपने घर के लिए चलो, ठीक है, जाओ. Then it's good advice, ये अच्छी advice थी. It was good advice. It's a good advice, but the driver wondered who even flew. Okay. But the driver wondered who even flew a spaceship that old anymore. कि इस पुराने जो spaceship है इसको अब कौन उड़ाता है, मतलब कि इस तरह से वो wondered था, ठीक है. So this is the answer of question 6. Okay student, I repeat again, step 7 really wasn't helpful at all. बिल्कुल at all means क्या होता है? बिल्कुल helpful नहीं होना, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं होना. It said if your ship was built before human discovered aliens. Give up मतलब कि give up means क्या होता है? हार मान लो और get a ride home, और अपने घर के लिए जाओ. Okay, and it's good advice, ये अच्छी advice है. But the driver wondered who even flew a spaceship that old anymore. Okay, so it's the answer. यहाँ पे आपका it was good advice, but the driver wondered who even flew a spaceship that old anymore. Okay student. So either you can take a screenshot or write in your notebook, okay, this time, but you have to complete whole work, okay student, क्योंकि because in जो भी आपके एग्ज़ाम आएंगे, whatever exam will come in this month, then this chapter also will, मतलब कि I mean आपकी जो reader part also come, okay, will come. So you have to learn also these question answers. So now I am going to raise this. I hope you have returned. बेटा आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, आराम से लिखने के लिए. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट. नाउ इट्स 7 आंसर इज हाउ डिड द स्पेसशिप फाइनली फ्लाई? How did the
spaceship finally स्टूडेंट राइटिंग अच्छे से लिखनी है बेटा आप लोगों को. ओके, डोंट मेक एनी मिस्टेक इन योर स्पेलिंग्स, सो राइट केयरफुली विदाउट एनी मिस्टेक. हाउ डिड स्पेसशिप फाइनली फ्लाई? ओके, the spaceship finally worked. पता है ना आप लोगों को, उसने किक लगाई थी तब वो मतलब कि वर्क किया था, उसने काम किया था. द स्पेसशिप फाइनली वर्कड when the driver gave it a little kick. Okay, the spaceship finally worked when the driver gave it a little kick. Okay student, so you have to write this, and after doing answer you have to leave one line also. Okay, now leave one line. Last question is 8th. Why did the driver begin to look for another guide even after the spaceship began to fly. Okay, why did the driver begin to look for another guide? Okay, even after the spaceship began to fly. Okay students, its answer is, it means ये क्या पूछ रहा है, why did the driver begin to look for, मतलब कि क्यों वह ढूंढने लगा for another guide, दूसरी गाइड को, even after the spaceship began to fly, जबकि उसका वो स्पेसशिप उड़ने के लिए रेडी था. ठीक है, then answer is, इसमें से then we will write some answer from questions. Okay, the driver began, तो यहाँ पे begin का क्या हो जाएगा, begin का क्या हो जाएगा, begin हो जाएगा, क्योंकि जब भी डिड से आंसर अपन क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पे जो वर्ब होती है वर्ब को हम सेकंड फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है, तो द ड्राइवर बिगेन टू लुक फॉर मीन्स क्या होता है, दिस इज अ फ्रेजल वर्ब, इट मीन्स ढूंढना. ठीक है, लुक फॉर अनदर गाइड even after the spaceship began to fly. सेम आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आपको क्वेश्चन में से राइट डाउन करना है. ठीक है, द ड्राइवर began to look for another guide even after the spaceship began to fly.
because the crash, जो उसका क्रैश हो गया था स्पेसशिप, क्रैश हैज़ डन a lot of damage, क्योंकि क्रैश से उसके जो स्पेसशिप में काफ़ी डैमेज हो चुका था. सो ही wanted to figure out a way to hide it from his mom, क्योंकि वो अपनी मम्मी से उसके डैमेज को छिपाना चाह रहा था, इसलिए वो उसको मतलब कि अनादर वो गाइड उसको देख रहा था. ठीक है. द ड्राइवर बिगेन टू लुक फॉर अनादर गाइड इवन आफ्टर द स्पेसशिप बिगेन टू फ्लाई. यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन में से लिखना है बेटा. यू हैव टू राइट टिल हियर फ्रॉम द क्वेश्चन. ओके, यहाँ तक आपको फ्रॉम दिस you have to write till here. The driver began to look for another guide even after the spaceship began to fly. यहाँ तक आपको क्वेश्चन में से लिखना है. Then after that, because the crash had done a lot of damage, क्योंकि क्रैश खूब सारे डैमेज मतलब काफ़ी डैमेज कर चुका था उसके स्पेसशिप में. So he wanted to figure out a way to hide it from his mom. तो वो अपनी मतलब कि मम्मा से छिपाने के लिए उसको कर रहा था. ठीक है, देख रहा था. ओके स्टूडेंट, सो राइट दिस एंड व्हेन वी आस्क क्वेश्चन फ्रॉम डिड देन इन वर्ब यू हैव टू चेंज इन सेकेंड फॉर्म. ओके, वर्ब को आपको सेकेंड फॉर्म में चेंज करना होता है. ओनली ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है. Now I am going to raise so student question answers of this chapter okay has been done, करवाए जा चुके हैं. अब now we will do its book work of this chapter. Okay, we will do book work of this chapter. So see in your book on page number 15 downside think and answer. इसमें आपको बताना, ओरली बताना है. Who do you think was the driver of the spaceship? आप क्या सोचते मतलब कि उस स्पेसशिप का ड्राइवर कौन था? एलियन था. देन यू कैन राइट हियर एलियन. ओके, ओपन एंडेड क्वेश्चन मे बी हेल्पफुल. ओपन एंडेड क्वेश्चन मे बी हेल्पफुल. दिस इज मतलब कि एक लाइन दे रखी है. देन हु वॉज आस्किंग द क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन उसमें कौन आस्क कर रहा था? तो एलियन वॉज आस्किंग द क्वेश्चन. ओके, टू होम वॉज द स्पीकर आस्किंग द क्वेश्चन, और वो किससे पूछ रहा था? तो इसमें क्या है, वो मशीन से पूछ रहा था. देन यू हैव टू राइट आंसर. इट्स द स्पीकर आस्किंग द क्वेश्चन टू मशीन. ओके, वाई वॉज द स्पीकर आस्किंग क्वेश्चन? द स्पीकर वॉज आस्किंग क्वेश्चन बिकॉज ही हैड अ प्रॉब्लम, क्योंकि उसको कोई प्रॉब्लम थी. ठीक है. डिड दे सॉल्व द स्पीकर्स प्रॉब्लम, क्या मतलब कि स्पीकर की प्रॉब्लम सॉल्व हुई? तो नहीं हुई ना. सो नो दे डिड नॉट. ओके ओके स्टूडेंट, सो यू हैव टू राइट इट्स फर्स्ट जो फर्स्ट आंसर फर्स्ट आपको लिखना है एलियन. ठीक है, एलियन उड़ा रहा था. ठीक है, स्पेसशिप में जो ड्राइवर था कौन था? एलियन था. देन सेकेंड का वन आंसर ए. इसमें भी हु वॉज आस्किंग द क्वेश्चन? एलियन या ड्राइवर बोल सकते हो, एलियन. वाई वॉज द स्पीकर आस्किंग द क्वेश्चन, या टू whom was the speaker asking the question? The speaker
आंसर बी, द स्पीकर was asking the questions to machine. Okay, the speaker was asking the question to machines. ठीक है, then answer C. Why was the speaker asking question? The speaker was asking the questions because he had a problem. Okay, student. Its answer is this. Did they solve the speaker's problem? आंसर क्या आएगा इसका? डी. No, they did not. Okay, only its answer. Okay, इसका आंसर ओनली यही होगा. No, they did not. It's a short answer. Okay, so I hope you have do this work in your book also, and those students don't have book, they can write its answer, okay, in your notebook. Okay, student, now I'm going to read this. So let's see, turn the page number 16. Okay, student, here complete the फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग डू एंड हैव करेक्टली. यहाँ पे डू और हैव को आपको करेक्टली यूज करना है. ओके, ऊपर आप पढ़ सकते हो इसमें, रीड दिस सेंटेंसेज. आई टेल द शिप दैट आई हैव अ प्रॉब्लम. आई टेल द शिप दैट आई हैव अ प्रॉब्लम. तो यहाँ पे हैव को यूज़ किया है, बट द क्रैश हैज़ डन सो मच डैमेज. पर यहाँ पे देखो डू यूज़ हुआ है, आई मीन डन डू यूज़ हुआ है. ओके, इसके डू की ये थर्ड फॉर्म है. तो बट द क्रैश हैज़ डन सो मच डैमेज. वर्ब्स लाइक डू एंड हैव आर यूज्ड विथ स्पेसिफिक एक्टिविटीज. एग्जाम्पल्स. ओके, लाइक देखो इसमें आई डू अ बाथ, इनकरेक्ट. यहाँ पे जो आई डू अ बाथ अपन बोलते हैं, इट्स इनकरेक्ट. आपको यहाँ पे क्या बोलना है? आई हैव अ बाथ. आई हैव अ बाथ. तो दिस इज द करेक्ट. तो यहाँ पे अपन को अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस वी हैव टू चूज डू और हैव. ओके, सो लेट्स रीड फर्स्ट. आई डैश फिनिश्ड माई होमवर्क. तो क्या आएगा यहाँ पे? आई डैश फिनिश्ड माई होमवर्क. तो यहाँ पे क्या आएगा? हैव आएगा. ओके, क्यों? क्योंकि कौन सा सेंटेंस है ये? प्रेजेंट परफेक्ट है. तो यहाँ पे जब थर्ड फॉर्म आ रही है इसके बाद में, तो आपको हैव चूज करना है. ठीक है. देन सेकेंड वन इज कुड यू डैश द डिशेज टू डू. सॉरी, कुड यू डैश द डिशेज टूडे. डू द डिशेज मीन्स क्या होता है? बर्तन साफ करने को डू द डिशेज बोलते हैं. ठीक है. तो कुड यू, तो यहाँ पे आपका डू आएगा. ठीक है, इट्स करेक्ट. ओके, देन सी. आई डैश समथिंग इम्पोर्टेंट टू से. तो यहाँ पे क्या? कुछ भी होने के लिए कि आई हैव समथिंग. तो यहाँ पे भी आपका क्या आएगा? हैव. ओके, देन डी. देयर इज सो मच वर्क टू डू. मतलब मेरे पास काफ़ी काम है करने के लिए. देन हियर वी विल राइट डू. ओके, नाउ ई. द चिल्ड्रन डैश अ हॉलीडे टुमारो. तो क्या आएगा? हैव अ हॉलीडे. तो यहाँ पे क्या आएगा? हैव अ हॉलीडे. ओके, वी विल राइट हियर हैव अ हॉलीडे. देन एफ. एफ आंसर इज कैन यू डैश मी अ फेवर. तो यहाँ पे डू आएगा. वी विल राइट हियर डू. ओके, माई डॉग्स ऑलवेज
डैश मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट, कुछ भी लेने के लिए, खाने पीने के लिए, जब भी हम आजकल हम हैव का यूज़ भी करते हैं, टेक भी यूज़ कर सकते हो, बट हैव भी आपको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे माई डॉग्स ऑलवेज हैव, क्योंकि लेने के लिए हैव का यूज़ होता है, ठीक है। देन एच, डैश अ काइंड डीड वेन एवर यू कैन, ओके। तो यहाँ पे भी आपका डू का यूज़ होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, फिल दीज ब्लैंक्स, ओके, लाइक दिस। एंड हियर लिसन लाइव, लिसन लीव, ये आपको क्या करना है लाइव, ये आपको इसमें आपने मतलब कि अब्दुल कलाम के बारे में आपने थर्ड में या आपके चैप्टर था उसमें आपने स्टोरी पढ़ी होगी, तो ये उससे रिलेटेड है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको इसमें ट्रू और फॉल्स करना है, ये आप खुद को सेल्फ करना है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ पेज नंबर 18, कम to page number 18. Here subject and predicate, subject and predicate on page number 18. Here student subject and predicate आपने पढ़ा होगा in grammar. You have this you have separate chapter related of this chapter. आपके separate chapter है इस topic से related. So in this subject and predicate, okay. In short, I am going to tell you only subject and predicate. A sentence had two part. A sentence has two part, one of subject and one of predicate. Like, okay. Sentence, क्या इसमें two part होते हैं, subject और predicate. Okay. सब्जेक्ट मीन्स whom is talking about in the sentence, हम किसके बारे में बात करते हैं, whom is talking about in this sentence, that is called subject. और what is said and describe about the subject, it is called predicate, okay. I repeat again, whom is talking about in the sentence is called subject, and what is talking and describing about the subject, it is called predicate. Predicate always start with a verb, प्रेडिकेट हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है, और सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन एंड प्रोनाउन आर कॉल्ड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं, वही सब्जेक्ट कहलाते हैं। और प्रेडिकेट हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है, इसमें वर्ब मतलब होनी चाहिए, ओके। सो हियर यू हैव टू मैच अकॉर्डिंग द, you have to match this exercise, I mean subject and predicate, okay. First check it, the silver moon, okay, the silver moon rose in the dark sky. तो यहाँ पे आप इसको फोर्थ से मैच करोगे, द सिल्वर मून रोज इन द डार्क स्काई. डू यू राइड अ बाइसिकल, डू यू राइड अ बाइसिकल, तो इसमें आप थर्ड से मैच करोगे. द शॉर्ट गर्ल कुड नॉट रीच द शेल्फ, जो छोटी लड़की है मतलब शॉर्ट हाइट में वो शेल्फ तक नहीं पहुंच सकती, ठीक है. यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, सो यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, सो डी आपको सेकेंड से मैच करना है, ठीक है. नाउ सी कम टू द पेज नंबर, लेट्स मूव ऑन पेज नंबर 19. आपने इन ग्रामर यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट द फ्रेज एंड क्लोज, आपने फ्रेज और क्लोज के बारे में पढ़ चुके हो. सो दिस एक्सरसाइज रिलेटेड ओके फ्रॉम फ्रेज एंड क्लोज से रिलेटेड है, ठीक है. सो लेट्स सी, राइट P फॉर फ्रेज एंड C फॉर क्लाउज फॉर द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स. ओके, आई रिपीट अगेन, राइट P फॉर फ्रेज, P तो आपको फ्रेज के लिए लिखना है, एंड C फॉर क्लाउज फॉर द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स. इसमें पहले आप इसका देखो, इसमें रीड द फॉलोइंग, दैट इज डिफिकल्ट, हु इज वेयरिंग ए ब्राउन कोट व्हेन आई रीच द स्टेशन. ओके, सी यू कैन सी दैट दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. सच ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड क्लोज, जिसमें सब्जेक्ट होता है वर्ब होता है उसको हम क्लोज के नाम से जानते हैं. फ्रेज में नॉट हैव अ सब्जेक्ट और वर्ब, फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब मतलब कि कोई ज़रूरी नहीं वो सब्जेक्ट और वर्ब हो, बट क्लोज ऑलवेज हैव अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, बट क्लोज में हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब होती है, ठीक है. सो अकॉर्डिंग दिस वी विल डू दिस एक्सरसाइज. ओके, फर्स्ट सी, whom you were calling, क्या है ये, whom were you calling. in this sentence there is subject also and there is verb also. whom you were calling, whom
वर यू कॉलिंग। ये आपका सेपरेट वीडियो बना हुआ है मैम का, उसको आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, क्लोज आएगा, ठीक है। देन बी इज, इसमें ओनली ही है, तो ये क्या है, ये फ्रेज है, ठीक है। आई मीन इसका मैं इस तरह से लिखती हूँ, ए आंसर और बी आंसर, ठीक है। सी में देखो आप, अ लॉन्ग रोप, ये भी क्या है, ये फ्रेज है, इसमें ओनली सब्जेक्ट ही है, ओके। दैट यू सा, दैट यू सा, ये क्या है, इसमें डी, ये भी ओनली सी है। ई में क्या है, ओल्ड मैन, इट्स अ फ्रेज। व्हेन द मैच बिगेन, ये इसमें एफ क्या है, सी। देन जी, वॉन द मैच, फ्रेज, और एच में क्या है, सी, ओके। सो यू हैव टू फिल दिस ऑप्शन इन दिस bracket, okay. So student, in next video we will start the new chapter, okay. Till then keep practicing and keep learning, okay.